So yesterday we were doing this fixed asset schedule and we were about to calculate the depreciation. So have you guys tried, or before that any doubts so far? No, Manpreet, haven't tried. Was caught up in my official work, and no doubt before that. Yeah. I tried, but I still did not get the how to put it in the form. So if we just forget the formula for one moment, what you think the concept should be? So we have the rates given. If we go back to the assumption sheet, and here's the rates, right? And this is our so far fixed asset schedule. So what do you think the concept should be for depreciation? Manpreet, can you zoom in a bit? Yeah, Uh, sure. yeah, thanks. Yes. So I was asking what should be the concept point for depreciation here? It's simple. If it's a straight line method, then we calculate on the value of the assets is equal to the percentage of uh, amortization rate or the depreciation rate. Right. So Yeah. here in the assumption sheet, there is no information given as such SLM or WTP. What we know, one thing about straight line methods is, uh, in the case of straight line method, there's always an estimated life of asset Yeah. given. So Right. based on that life, they derive the either absolute amount or the percentage for depreciation. So Right. since the no input for life of asset is given, so we assume that this is the WDP, Yeah. method Right. of depreciation. All So right. now that's clear that this is the rate. Now I'm asking how we should apply it. So not asking for the exact Excel formula, but just asking the concept that how you think it should be. सो पहले साल में वो कम होगा 10%, देन जो वैल्यू बचेगी माइनस करके 10% will deduct again 10% or whatever rate it is given, and so far and so forth ऐसे ही जाएगा आगे, I guess. So can we say that depreciation will be applicable on this balances? So opening plus the purchases Lease rent, plus lease rents plus interest interest capitalized capitalized. minus sales. So Yeah. whatever the balance figure will be, this will be multiplied with the rate of depreciation. So rates for Yeah. building, it's 10%, right? Right. Is there anything else we need to do? No, Yeah, I we don't have think to so. do it for 91 days. Oh yeah, 91 days or 0 days? before operating For the first year, it will be 91 days For the second year? of whole year depreciation. 365 365 days. Damini, what do you think? Ma'am, first is 91 days and second is 365 days. Okay. Is our asset ready to use in first year? No. No. So if we go back to the fundamentals of accounting, they say that depreciation is applied when the asset is ready to use. Right now, this is a capital work in progress. And there is Right. nowhere in the accounting that says that you have to depreciate your capital work in progress as well. Right. Right? So Right. this Right. means we here not linked with 91 days, but the year of operations. So far the asset is not operational. It means it is not ready to use, which that exact word mentioned in accounting standard. If we go back to the accounting standard for depreciation, it's clearly state that the asset is depreciated when they are ready to use. So जब वो पूरी बन गई है, जब वो यूज की जा सकती है for its intended purpose, then it's ready to depreciate it. But before that, if it is in construction process, it's still improving, it's still becoming. So you cannot depreciate what's, it's still not complete. So we will take 0 days here. So I'll freeze the row here, divided by 365 days. So this means for the first year, my depreciation will also be 0, because right now my building is under construction. It hasn't completed, so I cannot apply depreciation
depreciate it just because it's under construction, right? Right. Now I Yeah. can drag it. So this is automatically calculating the WDV thing because the next year depreciation is applied on the next year's opening plus addition. So this year closing is already after the depreciation deduction. So the depreciation in the form of WDV is already in action. So this will be the depreciation for building. Likewise, we can calculate the depreciation for interiors. So same again, we'll first calculate the balance on which we have to apply the depreciation, which will be opening plus the purchases or the additional construction plus lease capitalized, interest capitalized, and minus any sale or disposal there, multiplied with the rate of depreciation for interiors, which is again 10% in this case, multiply by the number of operating days. So we can freeze like this, divided by 365 days. Likewise, we'll depreciate computers. So again, the same formula, opening, purchases, interest capitalized, lease capitalized minus sales into rate of depreciation, which is 60% in this case now. So now I have closing balance ready. So this will be my final closing balance for building. This will be my final closing balance for interiors, and this will be my final closing balance for computers. So I can now do the total here, and I can write here total depreciation and I can write here fixed assets closing balance. This will be combined total. So यहाँ पे हम इसको separately add कर सकते हैं to link it to our P&L. So total depreciation will be depreciation on buildings plus interiors plus computers. Can highlight with the total color, main total color. Same we can do for closing balances. Right? So this completes our fixed asset schedule. Now I can link the depreciation and our P&L. I can remove this highlight. And from here, I can link it equal to fixed asset schedule and this total value of depreciation I'll link here. So this so far completes my P&L completely. So we have filled all the columns. The taxes is done, interest is there, depreciation is there, lease rentals is there, another cost is there. Now what is remaining is to do the balance sheet part, and for which one thing we need to find out is the working capital, current assets and current liabilities. And we have a small information given in regard to current asset, current liabilities. So we have given the asset days and liability days. So for stock we have 90 days. What does stock 90 days means? कि जो भी आपका
टोटल मटेरियल होता है उसमें से 90 दिन का स्टॉक रहता है, 15 दिन के डेटर्स डेज होते हैं, मतलब आफ्टर एवरी 15 डेज डेटर टर्नओवर हो जाता है, मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर एवरी 90 डेज स्टॉक जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेल हो जाता है। और क्रेडिटर्स है 30 डेज, लाइक आफ्टर एवरी 30 डेज आपके पास अगेन ये लायबिलिटी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब योर क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, आफ्टर 30 डेज यू गेट द मनी, आपके पास कैश पेमेंट आ जाता है। एंड आ लास्ट थिंग जाता है हमें गिवन, मनप्रीत, आ जाता है, वी पे ऑफ सॉरी द वी पे दैट, वो हमारे Yeah. आउटफ्लो चला जाता है। हाँ जी, And हाँ जी। the last thing we have given that we have to maintain minimum cash balance of 1 million anyhow. तो कुछ भी हो जाए हमारे बुक्स में 1 million का मिनिमम कैश होना ही चाहिए। So let's see Okay. how we'll do the values here. So I'm asking how we calculate stock. So there will be some purchases of food and beverages, or for some bed sheets or linen, towels, or cutlery. So all these things will be there in purchases item. So जो भी हमारा P&L में अब purchases है, which is reflected in here, जो हमारे operating expenses, कैश फ्लो में होगा ना मनप्रीत, इन्वेस्टिंग में? that will be asset purchase. अच्छा अच्छा, ओके। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट है जो हमारा फूड एंड उसका स्टॉक है, तो वो हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन है। रूम्स का तो पेरोल का एक्सपेंस है मेजर, बैंक्वेट इज मे बी द एंटायर हॉल रेंटिंग एक्सपेंस, तो जो भी F&B का एक्सपेंस है दैट विल इंक्लूड द additional material purchase expense, right? ऑलराइट। Yes. So we will link it this line item here. So from P&L we'll link this F&B expense and then we'll link here the stock days. तो पहले साल का जो हमारा stock days है वो है 90 days. And because हमारे पास आगे का information नहीं है तो we'll maintain the same for future years. We're not changing it. So now how the stock will arrive? So can I say total purchases का 90 days का जो material होता है वो हमारा stock होता है. So राइट। purchases into 90 days divided by 365. या So this will be our stock item. Yes, Right. right. So we'll link it to our balance sheet in asset. तो ये जो हमारा stock का column है, so equal to working capital, we'll link from here. Now the next line item is debtor, which is again 15 days. तो debtors किस पे होते हैं? Revenue. Revenue पे, sales पे, and usually we have seen the concept that it's mainly on credit sales, credit revenue, but we are here assuming that everything is on credit, nothing is happening in cash. तो जो total revenue है हम उसको credit revenue assume करके ले सकते हैं। अगर हमारे पास information given होती that the business is happening 20% on cash revenue and 80% on the credit revenues, then we would have taken only the 80% part. But we are assuming that everything is happening, nothing is happening in cash transactions. So we can take the entire revenue. So total revenue, debtors days जो है हमारा वो है 15 days. यहाँ पे आप क्रेडिट से समझ पा रहे हो कि कैसे हुआ होगा. इट्स नॉट दैट कि आपने आज रूम बुक करवा दिया बट आप 15 दिन बाद पेमेंट करोगे. होटल के केस में एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसमें
कुछ परसेंटेज आता है और रिमेनिंग का बाद में आता है। तो जब वो बुकिंग करते हैं तो वो आधा रूम तो नहीं डाल सकते ना कि जब वो अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करते होंगे तो वो तो पूरा का पूरा स्लॉट बुक करते हैं। तो वहां पे फिर वो डेटर क्रिएट हो जाता है कि इससे पैसे लेने हैं, ये वाला बुकिंग हो गया है, सो वहां पे डेटर्स बनते रहते हैं। ये स्पेशली बहुत होता है इन केस ऑफ बैंक्वेट्स या जो कमर्शियल उसमें है, क्योंकि तब आप बिल्कुल, अगर आप एडवांस में बुकिंग्स करवा रहे हो तो फुल पेमेंट नहीं देते, आप एडवांस पेमेंट देते हो एंड देन वेन्यू डेट से मतलब जिस जो आपका इंटेंडेड डेट होता है उसके आसपास आप पूरा पेमेंट करते हो। So this will create the debtors here. So again I can say that total sales का 15 days का जो amount होगा वो हमारा debtors होगा, right? Yeah. So now we can link this debtors in the balance sheet as well. So here's the debtor. So the last item is creditors, और creditors होंगे हमारे खर्चों के ऊपर, कि जो हमारे खर्चे अभी आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, मतलब हमने जो मार्केटिंग के खर्चे हैं वो अभी हमने उसे बोला कि नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, सो दे ऑल वुड बी स्टैंडिंग इन आवर P&L एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड इनकर हुए हैं बट अभी पेमेंट नहीं हुई और हमारी लाइबिलिटी में आ रहे होंगे एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम इसका टोटल ले लेंगे कि जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे सेलिंग जर्नल के खर्चे हैं इनका टोटल करते हैं। हमारा क्रेडिटर डेज है 30 days, so we'll link it from assumption sheet. और हम इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा टोटल क्रेडिटर्स हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस इंटू 30 days डिवाइडेड बाय 365। तो हम इसको अपने लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिटर्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हो गया। एक बार क्योंकि हमारा फिक्स एसेट पूरा बन चुका है तो हम अपने फिक्स एसेट्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्डिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ से आ जाएगा, ये बैलेंस हम लिंक कर देंगे यहाँ पे। इंटीरियर का क्लोजिंग बैलेंस लिंक कर देंगे। Ideally this should be shown as one एसेट होटल, बट क्योंकि हमारे को डेप्रिशिएट अलग अलग करना होता है, डेप्रिशिएट हमें ब्लॉक वाइज करना होता है एसेट्स के, इसलिए हम इसको अलग अलग दिखा रहे हैं। इंटीरियर्स को होटल से अलग दिखा रहे हैं विच इज लाइक which combine everything, interior furnitures, electricals, all these items. ये आ गया हमारा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अब हम अगर हम अपना एसेट साइड देखें तो हमारे नॉन करंट एसेट्स फिल हो गए, इसका टोटल कर देते हैं। यह हो गया हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में डेटर है, स्टॉक है, कैश एंड बैंक रहता है। कैश एंड बैंक वी नो कि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा, तो मैं इसको अभी के लिए लिंक कर रही हूँ। तो वी विल गो टू कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उससे लिंक कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल करंट एसेट्स और इन दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। तो एटलीस्ट हमारा एसेट साइड पूरा लिंक हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू इक्विटी साइड। तो इक्विटी साइड में इन दोनों का टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का विल बी आर टोटल इक्विटी। तो इसको देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स, तो हमने अपना डेट स्केड्यूल बना लिया है।
तो वी कैन फिल डेट स्केड्यूल से हम इसकी लिंकिंग कर सकते हैं। और इसमें मैंने बोला था कि देयर इज वन पॉइंट वी आर स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, तो वो ये था कि ये जो हमारा क्लोजिंग लोन बैलेंस है, दिस बैलेंस, वी कैन नॉट इंटायरली लिंक इट, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती कि मैं बैलेंस शीट में जाऊं और लॉन्ग टर्म लोन्स में ये पूरा का पूरा बैलेंस लिंक कर दूं। डेट स्केड्यूल जो क्लोजिंग लोन बैलेंस आ रहा है, मैं इसको ऐसे लिंक नहीं कर सकती। इसमें गलती क्या है? गलती कुछ नहीं है, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 का अपना एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल 6, और उसका अपना एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने का। तो ये जो वर्टिकल फॉर्मेट्स हम बना रहे हैं, इट्स मोर सिमिलर टू स्केड्यूल 6, जस्ट दैट उसमें बहुत सारे लाइन आइटम होते हैं। हमारे पास वो सारे लाइन आइटम नहीं है हमारे बिजनेस में, तो हमने वो अवॉइड कर रखे हैं। बट व्हेन वी सी द कोका कोला का केस स्टडी, तो दैट विल बी मोर और लेस द सेम फॉर्मेट जो वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा होगा। अब स्केड्यूल 6 की एक रिक्वायरमेंट है, वो ये कहता है कि आप ये जो लोन का आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये पूरा लॉन्ग टर्म लोन्स में नहीं लेके जाओगे। व्हाट इज ट्राइंग टू आस्क कि अगर हम ईयर 3 में देखें, सो मेरा जो लॉन्ग टर्म बैलेंस है वो है 377 मिलियन का, राइट? सो दिस इज माय ईयर 3, और मेरा जो लॉन्ग टर्म लोन्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो 377 मिलियन का है। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या है? मतलब ये लोन को मैं अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज में डालती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? क्या उसका मतलब ये होगा कि ये मेरी ऐसी लायबिलिटी है जो मोर देन 12 मंथ्स तक चलेगी, राइट? Yes. क्योंकि वो सारी लायबिलिटीज जो विद इन 12 मंथ्स पे हो जाती है उसको हम करंट लायबिलिटीज कैटेगराइज करते हैं। यस। Yes. और वो सारी लायबिलिटीज जो 12 महीने से ज्यादा चलती है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कैटेगराइज करते हैं। Right. सो यहाँ पे हमारा स्केड्यूल 6 कहता है कंपनीज एक्ट का कि ठीक है, दिस विल बी योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट, बट जो द वेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो आपने पे करनी है वो तो विद इन 12 मंथ्स में पे होनी ही है, बिकॉज अगले साल की इंस्टॉलमेंट तो आपने अगले साल में, मतलब अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी ही है, राइट? Right. तो ये जो इंस्टॉलमेंट लगने हैं, ये जो नेक्स्ट ईएमआई जाना है, ये विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे हो जाएगा। तो स्केड्यूल 6 कहता है कि इस इंस्टॉलमेंट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में दिखाओ फिर कि ये उसमें पे होना है, और बाकी का जो आपका बैलेंस बचता है वो लॉन्ग टर्म में दिखाओ। तो उसका मतलब क्या होगा? मुझे लॉन्ग टर्म में कितना दिखाना पड़ेगा? 377 माइनस अगले साल जो ईएमआई पे होनी है 81, 295, मतलब मैं इतना लॉन्ग टर्म में दिखाऊं और बाकी का जो 81 था वो शॉर्ट टर्म में दिखाऊं, तो टोटल मेरा 377 बन जाएगा। Right. Right. तो वी नीड टू नाउ बाइफरकेट इनटू 2 पार्ट्स कि कितना पोर्शन हम टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका लॉन्ग टर्म में दिखाएंगे और कितना शॉर्ट टर्म में दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म में दिखाने वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है, जो आपके अगले साल आपने ईएमआई पे करनी है वो आप इस साल का जो क्लोजिंग है उसमें से माइनस करोगे, मतलब वो लॉन्ग टर्म के पार्ट में नहीं आएगा, वो नीचे आप करंट लायबिलिटीज में दिखाओगे। सो फॉर दिस हम यहाँ पे एक बाइफर्केशन बना लेते हैं जस्ट टू बी द पर्पस ऑफ डेट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, कि ये डेट हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो शॉर्ट टर्म डेट विल बी कि जो अगले साल जो ईएमआई पे होनी है वो वाला पार्ट, तो मैं ईयर 1 में ईयर 2 का ईएमआई लिंक कर सकती हूँ, यही मतलब अगले साल वाला ही विद इन 12 मंथ्स पे होना है, राइट? Right. सो मैं इसको पूरा लिंक कर लेती हूँ। एंड लॉन्ग टर्म पोर्शन क्या हो जाएगा? जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस है माइनस जो शॉर्ट टर्म पोर्शन है, बाकी का रिमेनिंग लॉन्ग टर्म पोर्शन हो जाएगा, राइट? यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, ये 377 था थर्ड ईयर का, तो जिसमें से 81 आप शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करोगे, मतलब करंट लायबिलिटीज में दिखाओगे,
और रिमेनिंग का 295 आप लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करोगे, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखाओगे. अभी भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, करंट लाइबिलिटी में दिखा देने से ये नहीं हुआ कि वो पे हो चुका है. इट्स स्टिल शोइंग एज लाइबिलिटी नीड टू बी पे, बट वो कैटेगराइज कर रहा है कि इस पूरे 377 मिलियन के लोन में से 81 मिलियन ऐसा है जो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर पे हो जाएगा, और बाकी का 295 ऐसा है जो लॉन्ग टर्म तक स्टैंड करेगा. क्लियर? Clear. So now we will link these balances in balance sheet instead of the total balance linking in the liability. तो मैं अपनी वापस बैलेंस शीट पे जाऊं तो ये नहीं होगा. तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पोर्शन आएगा, which is this one. और क्रेडिटर्स के नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स में शॉर्ट टर्म वाला जो मतलब विद इन 1 ईयर पे होने वाला पार्ट है वो आ जाएगा. हम इनका भी टोटल कर देते हैं. और टोटल लाइबिलिटीज विल बी टोटल इक्विटी प्लस टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस टोटल करंट लाइबिलिटीज. तो अब हमारा बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है. जस्ट वी नीड टू फिल दीज 2 फिगर्स, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. हमारा पीएनएल बन चुका है. हमारा कैश फ्लो का लिंकिंग रहता है, तो एक बार कैश फ्लो को भी लिंक कर लेते हैं. तो हमने प्रॉफिट ऑलरेडी लिंक कर रखा है. ये कैसे किया था, एक बार फिर से ही कर लेते हैं दोबारा से. तो पीएनएल में गए, जो फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा था वो हमने लिंक किया. ये हमने थोड़ा सा बात भी करी थी कि हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पे क्यों लिंक कर रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है, मतलब हम प्रॉफिट लेंगे और उस प्रॉफिट में कैश की एडजस्टमेंट करेंगे. मतलब जो खर्चे उस प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी और वो नॉन कैश नेचर के थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, उनको ऐड कर देंगे. तो ये जैसे ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लिंक्ड है, ये ऐड बैक हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल कैश आउटफ्लो में रिजल्ट नहीं हुआ है. तो इसको ऐड बैक कर देना चाहिए, हमारा प्रॉफिट इतने से बढ़ जाना चाहिए. इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम यहाँ पे ऐड बैक कर रहे हैं. क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये समझा था कि इंटरेस्ट हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड का खर्चा नहीं है, ये हमारे फाइनेंस से रिलेटेड का खर्चा है. हमने फाइनेंसिंग करवाई है, हमने लोन लिया है, ये उससे रिलेटेड खर्चा है. तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होना चाहिए, ये ऑपरेशंस की एक्टिविटीज का खर्चा नहीं है. सेम हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो तो भी वो हमारे ऑपरेशन की इनकम नहीं है, वो हमारे मेन कोर बिजनेस से रेवेन्यू नहीं आया, वो हमने अपने एसेट्स में या अपने इन्वेस्टमेंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, हमने कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, वहां से इनकम आई है, तो हमारे इन्वेस्टिंग की इनकम बन जाएगी, ऑपरेशंस की नहीं बनेगी. लास्ट थिंग हमें यहाँ पे करना था, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए समझते हैं. एक बार बैलेंस शीट पे चलते हैं. पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, सॉरी ये रहा कैश फ्लो, ये रहा कैश फ्लो और पहला लिखा हुआ है क्रेडिटर्स. तो पहले बैलेंस शीट पे चलते हैं क्रेडिटर्स पे और समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे. हम ईयर 4 से आपको दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिगर्स हैं तो इजीली समझ में आएगा. ईयर 4 में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 40 मिलियन और ईयर 5 में क्लोजिंग बैलेंस है ऑलमोस्ट 55 मिलियन. तो हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारे लिए कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है. आज की बात करूं मैं तो आउटफ्लो. सॉरी ईयर 5 की, बट ये अभी लायबिलिटी है, ये अभी मेरा कैश गया नहीं है. अच्छा अच्छा. मेरे लिए इनफ्लो हो गया तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव फिगर दिखाना चाहिए. ऑलराइट. तो ये कैश मेरे पास पड़ा है, लायबिलिटी खड़ी है, वो लायबिलिटी पे होगी, कैश उस दिन जाएगा. रिमेम्बर हम पीएनएल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो उस डेट की बनाते हैं पर्टिकुलर.
एज ऑन 31st मार्च। बैलेंस शीट कभी 1 अप्रैल टू 31st मार्च नहीं बनती। ये आपको सारे बैलेंसेस एक पर्टिकुलर दिन के दिखा रही है कि 31 मार्च को आपका लोन बैलेंस इतना है। अगर आप 31 जुलाई को देखोगे तो लोन बैलेंस कुछ और दिखेगा। लाइकवाइज ये एसेट का क्लोजिंग 31 मार्च का है, मे बी आप 31 मई को देखोगे तो 2 महीने का एडिशनल डेप्रिसिएशन लग चुका होगा और फिगर कुछ और दिखेगी। तो बैलेंस शीट and cash flow always represent the balances as on a particular date, not for the entire year. So having said that, जो हमारा ड्यूरिंग द डेट मतलब उस पर्टिकुलर डेट पे तो ये पेमेंट नहीं गई है, उस पर्टिकुलर डेट पे तो ये क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग ही है, क्रेडिटर्स खड़े हैं, मतलब तब तक तो हमारा ये 13-14 मिलियन का कैश इनफ्लो है। तो इसको मतलब जब मैं सीए कर रही थी तो मेरे एक कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर थे, उनका एक डायलॉग हुआ करता था विच लाइक फिट्स वेरी एप्ट इन द केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते टाइम एक डायलॉग बोला करते थे कि पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, इट इज इक्वल टू कि पैसा जा ही रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं कि पैसे का ना जाना मतलब अभी अगर क्रेडिटर्स खड़ा है मतलब पैसा गया नहीं है, कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो वो भी तो एक तरह से पैसे का आना ही है, राइट? इसकी एक और इफ यू हैव टू लॉजिकल सेंस बनती है ना मनप्रीत, कि अगर क्रेडिटर खड़ा है, हमने सामान लिया होगा तो शायद बेचा भी होगा, राइट और इन अ वे वो पैसा तो हमारे पास ही है, ये भी राइट शायद बनती है, राइट right? राइट। बट द बेसिक थिंग आप ये कह सकते हो कि आपको अपने फ्रेंड को 100 रुपीज वापस करने हैं, पर आपको वो 30 दिन बाद वापस करने हैं, तो अभी 30 दिन तक तो 100 आपके पास ही है, सो यू हैव द कैश इनफ्लो। सो इसका मतलब क्या हुआ, हम कैश फ्लो यहाँ मतलब हमें अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिटर्स का पॉजिटिव बैलेंस दिखाना है। पॉजिटिव बैलेंस क्यों दिखाना है? द सेम लॉजिक कि अभी वो कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, वो होगा उस पेमेंट डेट पे, पर अभी हुआ नहीं है। तो पॉजिटिव बैलेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ये करती, मैं पिछला बैलेंस माइनस करंट बैलेंस करती तो ये नेगेटिव बैलेंस दिखता, पर मुझे पॉजिटिव दिखाना है तो मैं करंट बैलेंस माइनस प्रीवियस बैलेंस करूंगी, राइट? तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चलते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्रेडिटर्स में इक्वल टू, बैलेंस शीट पे जाएंगे हम, करंट ईयर का बैलेंस मतलब करंट ईयर के क्रेडिटर्स माइनस पिछले साल के क्रेडिटर्स, और इसको हम ड्रैग कर देंगे आगे। तो ये हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आ गया। सो अब चलते हैं एसेट्स को समझते हैं। अब हमारे पास कैश फ्लो में 2 एसेट्स को एडजस्ट करना है, डेटर्स और स्टॉक, तो उनका रीजनिंग समझते हैं। नीचे आते हैं, अब ये डेटर बैलेंस है, राइट? अब डेटर बढ़ गया है, 30 से 40 हो गया है, मतलब 10 बढ़ गया है, 10 का डिफरेंस, मतलब 10 हमें और आने हैं अभी, आने हैं, पर आए नहीं है, नहीं, तो इट इज स्टिल लाइक हमारा आउटफ्लो। राइट वही जो सर की बात थी कि पैसे का ना आना भी तो जाना ही होता है, राइट तो ये हमें प्लस की जगह माइनस दिखाना चाहिए बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में, Right. तो माइनस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब प्रीवियस बैलेंस Minus माइनस करंट बैलेंस करेंगे, देन इट विल शो द आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों? क्योंकि अब ये पैसा आया नहीं है, अभी ये पैसा आएगा, कब आएगा? जब आएगा तब आएगा, बट आज की डेट में जिस दिन हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस दिन तो ये सब आउटस्टैंडिंग खड़ा है, राइट? Right. सो कैन आई से दैट कि हम डेटर्स में ये कर सकते हैं, इक्वल टू बैलेंस शीट हमारा प्रीवियस वाला बैलेंस माइनस करंट वाला बैलेंस, तो ये आउटफ्लो आ गया, माइनस में फिगर्स आ गए, यस? Yes. यस
सो विद द सेम लॉजिक हम स्टॉक के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक खड़ा है, अभी रियलाइज नहीं हुआ, जब वो सेल होगा तब पैसे आएंगे। तो अभी तो स्टॉक खड़ा है, मतलब हमारे पास सामान पड़ा है। अगर मेरे पास मेरी गिटार की शॉप है और मेरे पास गिटार पड़े हैं, तो वो गिटार कैश तो नहीं है ना, जब तक वो बिकेंगे नहीं तब तक कैश नहीं आएगा। तो पैसे का ना आना भी जाना ही है, सो इट्स लाइक आउटफ्लो। तो इसको भी हम करेंगे प्रीवियस माइनस करंट। इन सब का टोटल, मतलब स्टार्टिंग से लेके नीचे तक, ये पूरी एडजस्टमेंट के बाद ये जो फिगर बनेगी, ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हो कि आपने ईयर 4 में बेशक प्रॉफिट 78 मिलियन का कमाया हो, बट एक्चुअल कैश जो अर्न हुआ था वो था 211 मिलियन। वो कैसे? क्योंकि ये क्रेडिटर्स वाला कैश अभी भी आपके पास पड़ा है, ये अभी पेमेंट गई नहीं है, और ये दो कैश अभी आए नहीं है, तो ये हटा दिए। ये इंटरेस्ट कॉस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा नहीं था, ये फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, और ये किसी को पेमेंट जाती ही नहीं है। तो एक्चुअल अगर हम देखें कि हमारे पॉकेट में कितना कैश है, तो वो 211 है। उसको आप बाइफरकेट कर सकते हो कि इस 200 मिलियन में से मैंने 97 मिलियन अलग कर दिए कि एसेट खरीदनी पड़ेगी फ्यूचर में जाके जब वो खत्म हो जाएगी। 40 मिलियन आपको देने हैं फ्यूचर डेट पे अपने क्रेडिटर्स को, 40 के आसपास आएंगे भी आपके क्रेडिट डेटर्स और स्टॉक से, एंड 35 आपने इंटरेस्ट देना है। सो दैट कुड बी एलोकेशन ऑफ कैश, जो करके आपके पास इतना बच जाएगा प्रॉफिट, राइट? Yeah. Right.